اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ آیت نمبر 19 سے اب ہم شروع کر رہے ہیں. یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو یا اے وہ لوگو جو ایمان لائے، لا یحل لکم، تمہارے لیے حلال نہیں ہے، جائز نہیں ہے، ان ترثوا النساء کرہن، یہ کہ تم عورتوں کے وارث بنو زبردستی یا مجبوری میں. یہ کرہن کراہت سے ہے، مکروہ بھی جسے ہم کہتے ہیں، تو ناپسندیدہ طریقہ، وہ بھی اس سے مراد ہوتا ہے. وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ، اور نہ تم ان کو روکو، لِتَذْهَبُوا بِبَعْضٍ، یہ کہ وہ کسی کی طرف جائیں، مَا آتَيْتُمُوهُنَّ، جو کہ تمہیں مل گیا ہے، یعنی جو تم نے انہیں دے دیا. یہ اصل میں پیچھے چونکہ خواتین کے احکام چل رہے ہیں اور آگے بھی ساری باتیں انہی سے ریلیٹڈ ہیں، اور پیچھے بھی جو شادی کی ہے اور پھر اس کے بعد وراثت کی، خاص طور پہ خواتین کی وراثت کی، اور یہاں پر بھی وہی خواتین کے احکام کی کنٹینیوٹی ہے. اب وہ خواتین کے احکام کی کنٹینیوٹی میں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ مومنوں کے لیے یا مومن جو مسلمان ہیں ان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ زبردستی عورتوں کے وارث بن جائے. اچھا وہ کیوں جائز نہیں اور یہ ہوتا کیوں تھا؟ یہ ہوتا اس لیے تھا کہ بعض اوقات عورت مرد کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تھی، الگ ہونا چاہتی تھی، تو مرد کیا کرتے تھے، وہ طلاق نہیں دیتے تھے، روک کے رکھتے تھے. اور ان کی بنیادی وجہ اس کی یہ ہوتی تھی کہ وہ یہ کہتے تھے کہ نہیں بھائی تم پہلے جو مجھ سے حق میں لیا وہ واپس کرو. تو اس آیہ مبارکہ میں انہیں کہا جا رہا ہے ایک تو اس طرح سے روکنا ٹھیک نہیں ہے، اور ساتھ دوسرا کیا ہے، دوسری بات یہ کی جا رہی ہے کہ جو تم نے انہیں دے دیا حق مہر کے طور پر، وہ اس سے واپس لینا ان سے، وہ ٹھیک نہیں ہے. تو اب یہاں پر وہی بات کی جا رہی ہے کہ اے ایمان والو، تمہارے لیے جائز نہیں ہے یہ کہ تم وارث بنو عورتوں کے زبردستی، اور نہ تمہارے لیے جائز ہے یہ کہ تم ان کو گھروں میں روکے رکھو. اور ساتھ ہی کہا جا رہا ہے کہ نہ تمہیں جو تم نے انہیں دے دیا وہ ان سے لینا جائز ہے، الا مگر ان یاتینا بفاحشۃ مبینۃ، مگر یہ کہ وہ کوئی کھلی بے حیائی کا کام کریں. اب یہ ساتھ ہی استثناء آ گیا کہ ان کو روکنا اور ان کے زبردستی وارث بننا اور جو ان کو دیا وہ لینا جائز نہیں ہے، لیکن کس صورت میں، کہ وہ کوئی کھلی بے حیائی کا کام کریں تو اس صورت میں کیا جا سکتا ہے. اور ساتھ ہی اس کا حکم کہ اگر ایسا کام کرے تو کیا ہے، وہ آگے ساتھ ہی آ رہا ہے، وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور تم ان کو روکے رکھو گھروں میں. اچھا یہ جو خواتین ہیں ان کے لیے اصل میں میں اکثر کہتا ہوتا ہوں کہ عورت جب تک ماں ہے تو جنت ہے، بہن ہے تو غیرت ہے، بیٹی ہے تو رحمت ہے. اچھا جب بیوی بنتی ہے نا تو وہاں پر کچھ اور چیزیں بلا وجہ ہی لاشعوری طور پر یہ انسان کے دماغ میں آ جاتی ہیں. اب یہاں پر اس کا ذکر آ رہا ہے، وَعَاشِرُوهُنَّ، اور تم ان کے ساتھ گزر بسر کرو بالمعروف ہی، اچھے طریقے سے. فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، بس اگر تمہیں وہ ناپسند ہو، یعنی ان کی کوئی عادت یا ان میں کوئی چیز ایسی ہو جو تمہیں ناپسند ہو، فَعَسَىٰ، پس قریب ہے، ان تَكْرَهُ شَيْئًا، یہ کہ تم ناپسند کر رہے ہو کسی چیز کو، وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اور اللہ رب العزت اس میں بہت بڑی خیر، یہ بہت بڑی بھلائی بنا دے. اچھا اس حوالے سے میں اکثر اپنی بیگم کو کہتا ہوتا ہوں کہ جو عورتیں ہیں نا، یہ خاص طور پہ اللہ رب العزت نے بیویاں بنائی ہیں اس مقصد کے لیے تاکہ مرد کو اس کی اوقات میں رکھیں. اور اگر انسان ذہنی طور پہ فارغ ہو، کوئی خاص کام کرنے والا نہ ہو، کوئی مصروفیت نہ ہو، تو جس طرح کا انسان ہوتا ہے اور انسان کا جس طرح کا مزاج ہوتا ہے، تو کوئی بعید نہیں تھا کہ ہر انسان ہی خدائی کے دعوے کرے اور کسی کو. تو یہ اللہ رب العزت نے ایک انتظام کیا ہوا ہے انسان کے لیے کہ ایک طرف عورت کی زبان جو ہے وہ کہتے ہیں جی کہ بہت چلتی ہے، وہ یہ کرتی ہے، لیکن ہر چیز میں مثبت اور منفی دونوں پہلو موجود ہوتے ہیں. اب انسان کی مزاج یا انسان کی طبیعت یا انسان کا رجحان کچھ اس قسم کا بن چکا ہوا ہے کہ وہ ہر چیز میں منفی پہلو نکالتا ہے، لیکن اللہ رب العزت اسی کا مثبت پہلو انسان کو دکھانا چاہتا ہے. تو یہاں پر یہ وہی بات کی جا رہی ہے کہ این ممکن ہے تمہیں ایک چیز بری لگ رہی ہو اور اللہ رب العزت نے اس میں تمہارے لیے بڑی بھلائی رکھی ہو. اچھا جی، السلام علیکم.
वालेकुम अस्सलाम बेटा। वइन अरदतुम, और अगर तुम इरादा करते हो इस्तिबदाला ज़ौजिन, मकाना ज़ौजिन, कि अपनी बीवी को दूसरी बीवी से बदल दो, तो फिर क्या है, व आती तुम इहदाहुन्ना किंतारन, और अगर तुमने दिया हो किसी एक को खजाना, फला ताखुजू मिनहु शैयन, तो तुम उसमें से कोई चीज ना लो, अता खुजूनहु बुहतानन व इस्मन मुबीनन, क्या तुम चाहते हो कि वो उससे लो सरी जुल्म और नाइंसाफी या नाजायज तरीके के साथ। अच्छा, अब ये है कि जब शादी होती है तो मर्द पर लाजम है कि वो औरत को हक महर दे। तो इस आया मुबारका में उसी हक महर का जिक्र है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो मर्द के ऊपर लाजिम किया, और मर्द जब औरत को दे देता है तो वो चाहे किंतारन यानी एक खजाना हो, करून का खजाना दे दिया हो, लेकिन अगर उसको छोड़ के दूसरी शादी करना चाहता है तो उसके लिए जायज नहीं है कि वो उसमें औरत को दिए हुए माल में से कुछ भी वापस ले। तो फिर वो उसी औरत का हक है। वकैफ ताखुजूनहु, और तुम कैसे उससे लेते हो, वक़द अफ़दा बाज़ुकुम इला बाज़िन। अब ये उसी की तफसील बयान की जा रही है कि जो तुमने लेना है वो किस तरह, उसका क्यों नहीं लेना या वापस क्यों नहीं ले सकते, तो ये उसकी वजाहत की जा रही है। वकैफ ताखुजूनहु, और कैसे तुम उसे ले सकते हो, वक़द अफ़दा बाज़ुकुम इला बाज़, हालांकि तुम बाज से बाज अहद कर चुके हो, पूरा कर चुके हो। वाखजना मिनकुम मीसाकन गलीजन, और तुम ले चुके हो एक दूसरे के साथ अहद वासिक। यानी ये जो असल में ये जो हक महर दिया जाता है वो जिस चीज के बदले में दिया जाता है वो तो तुम ले चुके कर चुके, यानी अपना ताल्लुक, अपनी निस्बत कायम कर चुके हो औरत के साथ, और उस कायम करने के बाद अब तुम ये चाहते हो कि उसे वापस ले लो, तो ये मुमकिन नहीं है। ये तुमने एक वादा किया था और पक्का वादा किया था, यानी जो कि नाकाबिले वापसी हो जाएगा, इस वजह से अब तुम उसके लेने के अहल नहीं हो। वला तन की हूँ, और तुम निकाह ना करो, माँ नकाहा आबाउकुम, जिनसे निकाह किया तुम्हारे वालदैन ने, मिनन निसाई औरतों में से, इल्ला मा कद सलफा, मगर जो कुछ पहले हो गया, इन्नहु काना फाहिशतन व मक्तम व सा सबीला, बेशक वो था बेहयाई का काम, व मक्तन और नाराजगी का काम, व सा सबीला और बुरा रास्ता। अच्छा, ये अरब में एक रवाज था। होता ये था कि एक आदमी चूंकि अरब में कई कई शादियां करता था, वहां पे 5 7 8 10 शादियां करना कोई मायूब नहीं समझा जाता था उस मुआशरे में। तो अब एक आदमी मर जाता था तो उसकी जो बीवी होती थी वो बाद में इसी तरह औलाद को मुंतकिल हो जाती थी जैसे विरासत है। तो वो बाद में औलाद क्या करती थी, उनमें से किसी बीवी के साथ खुद निकाह कर लेती थी। यानी एक तो उसकी अपनी माँ है ना, उसकी माँ नहीं होती थी, दूसरी तीसरी चौथी बीवी, तो बाद में औलाद निकाह कर लेते थे। तो ये अरब में रवाज था। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस आयत के तहत इन सब चीजों से मना फरमा दिया, और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये हुक्म नाज़िल फरमा दिया कि हाँ, जो पहले हो चुका सो हो चुका। अब जो हो चुका वो भी अल्लाह की नाराजगी वाला काम था और बुरा दस्तूर, बुरा तरीका कार था। लेकिन अब जो हो गया सो हो गया, आइंदा ये काम बिल्कुल नहीं होगा और आइंदा इसे नहीं किया जाएगा। अच्छा, ये इसके बारे में तफसील बताई जा रही है कि ये आयत नाज़िल किस सिलसिले में हुई थी। तो ये हज़रत अबू कैस थे, उनका इंतकाल हो गया था। तो जो इनका बेटा है या इनका लड़का है, उसने उस औरत से शादी करनी चाहिए थी। यानी जो उसकी वालिदा की ज़ौजा थी, या कह लें माँ, सौतेली माँ थी। तो सौतेली माँ से शादी करना चाह रहा था, तो यहाँ पर ये आया मुबारका नाज़िल हुई। ठीक है जी? जी सर। चलो। अच्छा जी, हुर्रिमत अलैकुम, अब ये उससे अगली आयत है। हराम कर दी गई तुम पर, उम्महातुकुम, तुम्हारी माएँ। अच्छा, ये वो सारे मुहर्रमात हैं, वो सारे रिश्ते हैं जिनसे शादी करना मना है या हराम है इस्लाम में। और ये ज़हन में रखिएगा, ये अहम सवाल है और एन मुमकिन है पेपर्स में आ जाए, और मुहर्रमात निकाह लिखें या इस्लाम में मुहर्रमात लिखें, या इस्लाम में उन रिश्तों का जिक्र करें जिनसे निकाह करना या शादी करना हराम है। तो ये वो सारे रिश्ते हैं।
हुर्रिमत अलैकुम उम्महातुकुम, हराम कर दी गई तुम पर तुम्हारी माएँ, व बनातुकुम, और तुम्हारी बहनें, व अखवातुकुम, और तुम्हारी फुफियाँ, व मातुकुम, व अखवातुकुम, और तुम्हारी खालाएं, व अम्मातुकुम, और तुम्हारी फुफियाँ, व खालातुकुम, सॉरी क्या गलत पड़ गया, अच्छा, हुर्रिमत अलैकुम उम्महातुकुम, हराम कर दी गई तुम पर तुम्हारी माएँ, व बनातुकुम, और तुम्हारी बेटियां, व खवातुकुम, और तुम्हारी बहनें, व मातुकुम, और तुम्हारी फुफियां, व खालातुकुम, और तुम्हारी खालाएं, व बनातुल अख्खी, और तुम्हारे भाई की बेटियां, व बनातुल उख्ती, और तुम्हारी बहन की बेटियां, व उम्महातुकुम, और तुम्हारी वो माएँ अल्लाती अर्दानकुम, जिन्होंने तुम्हें दूध पिलाया, व अखवातुकुम मिनर रिदा, और तुम्हारी वो बहनें जो कि रिदाई हैं, यानी जो कि दूध पीने वाली मिलके बहनें हैं, व उम्महातु निसाइकुम, और तुम्हारी बीवी की माएँ, यानी बीवियों की माएँ, वो भी हराम है, व रबाइबुकुम उल्लाती, और वो बेटियां, वरबाइबुकुम, जो कि पली हैं तुम्हारे पास, फी हुजूरिकुम, तुम्हारी हुजरों में या तुम्हारे घरों में, मिन निसाइकुम, तुम्हारी बीवियों में से। यानी ये जो खास तौर पे ये वाली बात है ना, इससे मुराद ये है कि एक औरत से शादी की और उस शादी की पहले खामन से एक बेटी है, तो अगर तो वो जो बेटी है पहले खामन से, वो हमारे घर में या किसी बंदे के साथ रहते हुए वहां पे पलती है, बड़ी होती है, तो वो उनसे निकाह करना भी जायज नहीं है। किस सूरत में? अल्लाह ती दखल तुम बिहन्ना, जिन खवातीन से तुमने ताल्लुक कायम कर लिया, यानी एक औरत से तुमने शादी कर ली और जिस्मानी ताल्लुक कायम हो गया और उसकी पहले से एक बीवी है, तो सॉरी पहले से एक बेटी है, तो उस बेटी से तुम शादी नहीं कर सकते। हाँ, अगर ये है कि तुमने जिस्मानी ताल्लुक कायम नहीं किया और उसको तलाक दे के उस बेटी से करना चाहो तो तुम कर सकते हो। यही बात आगे आयत में बयान की जा रही है। फ़इन लम तकूनु दखलतुम बिहिन्ना, बस अगर तुमने उनके साथ दखूल ना किया हो, फला जुनाह अलैकुम, तो फिर तुम पर कोई हर्ज नहीं। व हलाइलु अबनाइकुम, व हलाइलु अबनाइकुम अल्लज़ीना मिन अस्लाबिकुम, और तुम्हारे लिए सुलभी बेटों की औरतें भी हराम हैं। अच्छा, ये सुलभी जो है ये वो क्या कहते हैं, ये इससे सुलभी से मुराद होता है वो रिश्ते जो कि हमारे चलते हैं, उनकी वजह से क्या कहते हैं, एक जिस्मानी ताल्लुक होता है और एक होता है हमारा नस्बी ताल्लुक। तो ये जिस्मानी ताल्लुक की बुनियाद पर जो रिश्ते बनते हैं उनमें भी जायज नहीं है। अब इसी की बात आगे आ रही है, वान तजमाउ बैनल उख्तैन, ये कि तुम जमा करो दो बहनों को, यानी एक ही वक्त में एक आदमी दो बहनों से भी शादी नहीं कर सकता, इल्ला मा कद सलफ़ा, मगर जो पहले गुजर चुका। इन्नल्लाह काना गफूर रहीमा, बेशक अल्लाह ताला बख्शने वाला और रहम करने वाला है। ठीक है जी, समझ आ रही है कि कोई नहीं? जी सर, आ रही है समझ। वल मुहसनातु, और वो औरतें, मिनन निसाई, जो कि शादीशुदा हैं औरतों में से, वल मोहसनात। अच्छा, ये जो लफ्ज़ मोहसनात है, ये यहाँ से मोहसन से मुराद है वो औरत जिसकी पहले से शादी हुई हो, यानी किस शादीशुदा औरतें जो हैं वो भी तुम्हारे लिए जायज़ नहीं है। वल मोहसनातु मिनन निसाई, और ऐसी औरतें जो कि पहले से शादीशुदा हैं, इल्ला मा मलकत ईमानुकुम, मगर जो कि तुम्हारी लोंडियां हैं। किताब अल्लाहि अलैकुम, लिख दी हैं अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए। व उहिल्ला लकुम मावरा, व उहिल्ला लकुम मावरा जालिकुम, और तुम्हारे लिए हलाल कर दिया है जो कुछ इसके अलावा है। अन तब्तगू बि अम्वालिकुम, ये कि तुम उनको हासिल करो अपने मालों के बदले। मुहसिनीना, खानदान वाली औरतें, गैर मुसाफिहीना, जो कि कोई ताल्लुक कायम ना करती हों या जिस्मानी ताल्लुक कायम ना करती हो किसी से। अच्छा, ये मुसाफिहीना से खास तौर पे मुराद ये है कि